دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن پر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ایپیسوڈ 2 پیشکش میرے کارواں۔ میں نے اپنے ذہن میں نقش نمبر ڈائل کیا اور رکھا والی میں چودھری نوازش علی کی حویلی سے میرا رابطہ قائم ہو گیا۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا کہ میں چودھری نوازش علی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ چودھری صاحب تو اس وقت سو رہے ہیں۔ دوسری طرف سے مجھے بتایا گیا وہ کوئی ہاتھی ملازم تھا یا پھر کوئی قریبی رشتہ دار ہی ہو سکتا تھا۔ میں نے کہا یہ کون سا سونے کا وقت ہے، جگاؤ سے۔ میرے لب و لہجے نے دوسری جانب فون سے چپکے ہوئے شخص کے ہوش اڑا دیے ہوں گے۔ چودھری نوازش علی کی مرضی کے بغیر اس کی عملداری میں کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا۔ کجا یہ کہ میں اس کی ٹھیک ٹھاک توہین کر رہا تھا۔ میرا انداز اس کے لیے یقیناً ناقابل برداشت ہوگا۔ تم کون ہو؟ اکھڑے ہوئے لہجے میں پوچھا گیا۔ میں نے بولنے والے کے زخموں پر نمک پاشی کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے چودھری کا باپ ہوں۔ اگر تم نے اس سے رابطے میں تاخیر کی تو میں اس کا دادا بھی بن جاؤں گا۔ کیا تم نے اسی قسم کی بکواس کے لیے اتنی رات کو فون کیا ہے؟ وہ شخص برہمی سے بولا۔ میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم چودھری نوازش علی کا دادا بنانے کے مجھے خواہش مند ہو۔ اس کو جگاؤ اور بتاؤ کہ وجدان کا فون ہے، وہ 1 منٹ کے اندر فون پر حاضر ہو جائے گا۔ اگر وہ 1 منٹ کے اندر فون پر حاضر نہ ہوا تو میں وجدان سے طوفان بن جاؤں گا اور پھر اسے لہو لہان ہونا پڑے گا۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ وجدان کے نام پر اسے چپ سی لگ گئی تھی۔ شاید وہ بہت اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا۔ چند لمحات کے بعد اس نے کہا کہ تم وجدان ہی ہو نا؟ اس بات سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ وہ میرے نام سے بہت ہی اچھی طرح واقف تھا، بلکہ اسے تازہ ترین صورتحال سے بھی اچھی خاصی آگاہی حاصل تھی۔ 2 منٹ کے اندر اندر چودھری نوازش علی فون پر موجود تھا۔ ہیلو وجدان۔ چودھری کی گراہٹ اویز آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ اس نے گفتگو کا انداز انتہائی بےہودہ انداز میں کیا تھا اور میں نے بھی اسے کوئی دلہی، علی گڑھ یا لکھنؤ کا کلچر متعارف کرانے کے لیے فون نہیں کیا تھا۔ تم اس وقت ہو کہاں؟ اچانک اس نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے بھی چال چلی اور کہا کراچی میں۔ جھوٹ مت بولو۔ اس زمانے میں CLA کی سہولت ابھی تک متعارف نہیں ہوئی تھی، ورنہ وہ فوراً جان جاتا کہ میں کس اسٹیشن اور کس نمبر سے فون کر رہا ہوں۔ چودھری دلدار نے ٹی وی سکرین پر مجھے بتایا تھا کہ وہ میرے بارے میں بڑے چودھری کو مطلع کرے گا اور اگلی صبح مجھے پکڑ جھکڑ کر رکھا والی روانہ کر دیا جائے گا، لیکن بڑے چودھری کی بات اسے اندازہ ہوا کہ چھوٹے چودھری کی اس سے بات نہیں ہو سکی تھی، ورنہ چودھری نوازش علی میری اس اسیری کے بارے میں آگاہ ہوتا۔ میں نے کہا چودھری، میں نے نہ صرف ڈیفنس سوسائٹی والے اس چوہے دان کا سوا ستیہ ناس مار دیا ہے، بلکہ تمہارا لخت جگر فیصل بھی مال غنیمت کے طور پر میری تحویل میں آ گیا ہے۔ کیا بکتے ہو؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو چودھری، میں نے دھمکی دینے والے انداز میں کرنا، ورنہ تمہاری ذرا سی گستاخی فیصل کو ناقابل تلافی نقصان سے دوچار کر سکتی ہے۔ میں تمہیں چیر کر رکھ دوں گا۔ وہ خون آلود انداز میں گرایا۔ اب پتا چلا رشتوں کی تکلیف کیا ہوتی ہے، میں نے تیکھے لہجے میں دریافت کیا۔ اپنی آنتوں پر ہاتھ پڑا ہے تو اندازہ ہو رہا ہوگا تمہیں۔ تمہاری یہ بلیک میلنگ نہیں چلے گی وجدان۔ وہ اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، فیصل تمہارے قبضے میں نہیں آ سکتا۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر میری اس سے بات کراؤ۔ اس کے ادا کردہ آخری جملے سے تشویش جھلکتی تھی۔ وہ اپنی بات میں دم ہم رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے لہجے میں وہ جزوی طور پر ناکامیاب تھا۔ میں نے اس کے لہجے سے اس کی اندرونی کیفیت کو بھانپ لیا۔ میں نے کہا چودھری سوری، میں اس وقت فیصل سے تمہاری بات نہیں کروا سکتا کیونکہ وہ بے ہوش ہے۔ اس کی میں نے ایسی درگت بنائی ہے کہ وہ خود فراموشی کی حالت میں بھی اسے چھٹی کے دودھ یاد آ رہا ہوگا۔ میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ وہ اعصاب پر کنٹرول نہ رکھ سکا۔ اس قسم کی بدتمیزیاں فیصل کے لیے مشکلات کھڑی کر دیں گی۔ تم سراسر جھوٹ بول رہے ہو، وہ تپتے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں ابھی چودھری دلدار کو فون کرتا ہوں، پھر تمہاری مکاری کا راز کھل جائے گا۔ تم ہاں مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کچھ ہاں نہیں کیا چودھری، میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ تم جس طرح چاہو میرے بیان کی تصدیق کر سکتے ہو۔ وہ پھنکارا، تمہارا جھوٹ تو اسی بات سے کھل رہا ہے کہ تم اس وقت کراچی میں ہو۔ اس میں جھوٹ والی کون سی بات ہے؟ میں نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا۔ ڈیفنس سوسائٹی کے حوالے سے تمہاری بک بک تو یہی ظاہر کرتی ہے کہ تم اس وقت لاہور میں کہیں چھپے بیٹھے ہو۔ تمہیں ہر قسم کے اندازے لگانے کی آزادی ہے۔ میں نے بے پرواہی سے کہا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا،
तुम्हारे दावों की तस्दीक तो मैं अभी कर लूंगा, जरा ये बताओ तुमने मुझे फोन क्यों किया है? अब आए ना मतलब की तरफ। मैंने उसकी चुटकी ली। वो बोला मतलब की बात तुम करो, क्योंकि फोन तुमने किया है। ओके, मैंने तहकीर अमेज अंदाज में उसकी बात काटी और सख्त अंदाज में कहा, मुझे मेरी साथी चाहिए। साहिल कहाँ है? उसने एक मकरू कहका लगाया, फिर बोला, वजदान, मैंने तुम्हारी महबूबा को फरोख्त कर दिया है। उसके बड़े अच्छे दाम मिल रहे थे, मैंने पहली फुर्सत में उसे बेच दिया। 10 करोड़ रुपए की रकम मामूली नहीं होती। अब वो कराची पहुंच चुकी होगी। अगर तुम्हें अपनी महबूबा से मिलना है तो शुएब गौरी के पास चले जाओ। वो कभी तुम्हारा है रहा था, अब मैं उसका है रहा हूँ। और साहिल वाली डील के अलावा भी हमारे दरमियान आइंदा के लिए बहुत कुछ तय हुआ है। वैसे एक बात है वजदान, वो हासी खुली डुल्ली गुफ्तगू कर रहा था। वो चलने में खामोश रहा, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोला, साहिल किसी कीमती नगीने से कम नहीं। वो जिसके हाथ में भी सजेगी, उसकी शान और आन बान को वो दुबाला कर देगी। मैंने चंद रोज उसे अपने पास रखा और वो मुझे 10 करोड़ का प्रॉफिट दे गई। नीलाम की दुनिया में शायद ही कोई किसी को इतने दामों फरोख्त करता हो। वो साहिल के हवाले से नहायती तौहीन अमेज अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था। वो जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाना चाहता था। मैंने जवाबी वार करते हुए इंतहाई मुतहम्मल लहजे में कहा, फिलहाल तो तुम अपने बेटे की फिक्र करो। मैं उसके जिस्म के एक एक रेशे से 10 करोड़ वसूल करूंगा। और खरीदार जानते हो कौन होगा? मैं जरा देर को रुका, फिर कहा, नहीं जानते, मैं बताता हूँ। चौधरी खरीदार होगे तुम। अगर तुम अपने बेटे को दर्दनाक अजाब से बचाना चाहते हो तो मेरी साहिल मेरे हवाले कर दो। मैंने बताया है ना, शुएब गौरी के पास पहुंच चुकी है वो। तो फिर तुम भी समझ लो कि अपनी बची कुची जिंदगी में तुम फैसल की सूरत देखने को तरस जाओगे। तुम्हारी तो मैं। उसने मुझे गलीज गाली दी और धड़ से फोन बंद कर दिया। मैं समझ गया, अब वो डिफेंस सोसाइटी वाली कोठी में फोन करेगा। जब तक वो मेरी बातों की तस्दीक नहीं कर लेता, मेरे सामने कमजोर नहीं पड़ सकता था। और मुझे कामिल इत्मीनान था कि फेज 2 वाली कोठी के हालात जानने के बाद उसकी सारी अकड़फों निकल जाएगी। वो मेरे सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। मजीद यकीन दहानी के लिए मैं फैसल से इसकी बात भी करवा सकता था। मैंने तहैया कर लिया कि अब कराची पहुंचने के बाद ही चौधरी नवाज़िश अली से राब्ता करूंगा। मैं रिसीवर को क्रैडल करने के बाद अपनी साथियों की तरफ मतवज्जा हुआ ही था कि फोन की घंटी बज उठी। मैंने दूसरी घंटी पर ही फोन अटेंड कर लिया। वो फरीद पाशा की कॉल थी। मैंने सोचा कि इस मर्तबा मैं तुम्हें फोन करता हूँ, उसने कहा, लेकिन फोन मुसलसल अंगेज जा रहा था। मैंने उसे बताया कि चौधरी नवाज़िश अली से बड़ी ही धुआंधार बात हो रही थी। क्या कहता है वो? पाशा ने पूछा। वो फैसल वाले मामले की तस्दीक किए बगैर यकीन करने को तैयार नहीं। ये तो कुदरती बात है, वो सादगी से बोला। मैंने पूछा, पाशा मेरे काम का क्या हुआ? तुम्हारा काम हो गया है। मैंने फैसल को बाहिफाजत कराची पहुंचाने के लिए अनायतुल्लाह बाजवा से तफसीली बातचीत कर ली है। तुम सुबह 7 बजे उस शख्स से जाकर मिल लो। मैंने उसे तुम्हारे बारे में अच्छी तरह बता दिया है, तुम्हें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे सीने से इत्मीनान भरी तवील सांस खारिज हुई। सुबह 9 बजे हमें एयरपोर्ट पहुंचना था। ये अच्छा हुआ कि फैसल वाला मामला 7 बजे निबट रहा था। मैंने अपनी तसल्ली के लिए पाशा से दरियाफ्त किया, ये अनायतुल्लाह बाजवा कौन है और वो किस तरह फैसल को लाहौर से कराची पहुंचाएगा? अनायतुल्लाह बाजवा मेरा एक बहुत ही करीबी आदमी है, पाशा ने बताया। इधर ही बादामी बाग के करीब इसका ट्रकों का अड्डा है। वो वहाँ वेलकम गुड फॉरवर्डिंग कंपनी के नाम से कारोबार करता है। उसके ट्रक मुल्क के तूलो अर्ज में माल की तरसील करते हैं। लाहौर और कराची के दरमियान भी उसके कई ट्रक चलते हैं। तो क्या वो फैसल को किसी ट्रक में डालकर कराची पहुंचाएगा? मैंने पूछा। फरीद पाशा ने वजाहत की। पहुंचाया तो उसे ट्रक में डालकर ही जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं कि वो किसी की नजर में आ जाए। वो अनाज वाली बोरियों के दरमियान कहीं होगा जहां वो बेहोश और जिंदा पड़ा रहेगा। सांस की आमदोरफ्त के लिए मुनासिब हवा का बंदोबस्त छोड़ा जाएगा। पाशा, फैसल मार्शल आर्ट्स का भी माहिर है। मैंने एक खदशे की जानिब इशारा किया। अगर वो होश में आ गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वो किसी को नुकसान न पहुंचाए, मगर वो फरार हो गया तो मेरे लिए बहुत ही खराब बात होगी। मैं उसकी वजह से हासा मजबूत हो गया हूँ। तुम इसकी फिक्र न करो, उसका मार्शल आर्ट मेरे इल्म में है, वो तसल्ली देते हुए बोला। मैंने हर पहलू का अच्छी तरह जायजा ले लिया है। फैसल को अच्छी तरह बांधकर ट्रक के अंदर पहुंचाया जाएगा। वो किसी भी तरह अपनी बंदिशें खोल नहीं सकेगा। वैसे हर ट्रक के साथ ड्राइवर के अलावा 2-3 क्लीनर भी होते हैं जो हर किस्म की सूरत हाल से निपटना जानते हैं।
भाई थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर साहिल कराची न पहुंच चुकी होती तो मैं हुड ट्रक में फैसल के साथ कराची तक सफर करता, लेकिन ये नहीं हो सकता था कि मैं 1-2 दिन के लिए ये कष्ट उठाकर साहिल की तरफ से गाफिल हो जाऊं। मेरा कराची पहुंचना बहुत ही जरूरी है, लिहाजा मुझे फरीद पाशा की बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। टेलीफोनिक सिलसिला खत्म हुआ तो सुबह के 4 बज रहे थे। हम लगभग 6:15 बजे कोठी से निकले। उस वक्त अंधेरा अभी खत्म नहीं हुआ था। फासलिया कॉलोनी से बादामी बाग कम से कम आधे घंटे का रास्ता था। सदफ और मैं लाहौर से ज्यादा वाकिफ नहीं थे, अलबत्ता जरगुर को रास्तों से अच्छी खासी शनासाई थी। ताहम उसने अभी इस वक्त सीधे रास्ते को एहतियार करने का ही मशवरा दिया और हमारी रहनुमाई करने लगी। ये रास्ते कदरे तवील मगर साफ सुथरे और सीधे थे। इस मैदान में हमारे दरमियान हल्की फुल्की गुफ्तगू भी हो रही थी। अजीब इत्तेफाक था कि मैं जरगुल की कहानी नहीं सुन सका था। हालात ने इसका मौका ही नहीं दिया, हालांकि मुझे यकीन था उसकी कहानी में बड़ी ही सनसनीखेजी होगी। मैंने इसके बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं किया था और फैसला तो उसी को करना था। मैंने सोचा बादामी बाग वाले मामले से निपट लूं, फिर कहीं बैठकर नाश्ता करेंगे और इस दौरान इस मसले पर भी डिस्कस हो जाएगी। मज़क चुंगी, जनाजा गाह और भाटी से होते हुए हम मकीशा पहुंच गए। अभी तक उजाला नहीं फूटा था। जरगुल ने बताया कि आजादी चौक से हमें दाएं जाने मुड़ना होगा, फिर बादामी बाग का रास्ता आसान और सीधा हो जाएगा। मैंने थोड़ा आगे जाकर करोला को राइट टर्न दिया और गाड़ी को पाकिस्तान, मीनारे पाकिस्तान और बादशाही मस्जिद के दरमियान में से गुजारता चला गया। लेकिन 50 गज आगे जाने के बाद मुझे चौंकना पड़ा। एक तशवीशनाक सूरत हाल से सामना हो गया था। वहां पुलिस ने नाका लगा रखा था। इधर से गुजरने वाली गाड़ियों की बाकायदा चेकिंग हो रही थी। हालात की इस वाहियात सूरत ने मुझे बौखला कर रख दिया। 1 दर्जन के करीब पुलिस वालों को देखकर अंदाजा होता था कि वहां कोई जबरदस्त किस्म की कार्रवाई हो रही थी। एक पुलिस एहलकार के इशारे पर मजबूरन मुझे भी टोयोटा करोला रोकना पड़ी। इसके सिवा चारा भी नहीं था, क्योंकि वहां से फरार होना सरासर नुकसानदेह साबित होता। पुलिस की 2 स्टार्ट मोबाइल्स भी वहां दिखाई दे रही थी। वो बड़े ही संगीन लम्हात थे। मेरा जहन बरकत रफ्तारी से सोचने में मसरूफ हो गया। चेकिंग के मनाजर मुझे बहुत दूर तक सोचने के लिए मजबूर कर रहे थे। इस खतरनाक ख्याल ने मुझे हिला कर रख दिया कि अगर पुलिस वालों ने हमारी गाड़ी की तलाशी के दौरान में डिक्की को खोलकर देख लिया तो क्या होगा। उस डिक्की में रखा वाले की फिरौन सिर्फ चौधरी नवाज अली का लख्त जिगर बेसुध पड़ा था। इस हालत में किसी शख्स को डिक्की में डालकर कहीं ले जाने का कोई जवाब हमारे पास नहीं था और हम कानून की नजर में सरासर मुजरिम ठहरते। मैं इन मोहलिक ख्यालात को अपने जहन में गर्दान ही रहा था कि एक बावर्दी पुलिस एहलकार तेजी से हमारी गाड़ी की जानिब बढ़ने लगा। पता नहीं इस नाजुक मौके पर तकदीर को कौन सा संगीन मजाक करना था। खौफ और डर बड़े ही अजीब एहसासात हैं। खतरा जितना दूर हो ये उसी कदर ज्यादा सताते हैं। फांसी के तख्ते पर खड़ा हुआ सजाए मौत का मुजरिम शायद इसीलिए निडर और बेखौफ दिखाई देता है। खतरे और उसके दरमियान फासला 0 के बराबर रह जाता है। जब इंसान ये सोच ले कि जो होना है हो जाए तो फिर कुछ भी परवाह नहीं रहती। हर शय गैर अहम होकर रह जाती है। मैं ज़हनी तौर पर हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार हो चुका था। इस तैयारी ने मेरे एतमाद में बेपनाह इजाफा कर दिया था। हालात ऐसे नहीं थे कि पुलिस वालों से हाँ महा टक्कर ली जाए। किसी चालाकी ही से इनसे निजात हासिल की जा सकती थी। हमसे आगे 5-6 गाड़ियां खड़ी थी। पुलिस वाला बड़े ही नबे तुले कदमों से चलते हुए करोला के करीब आ गया। मैं ड्राइविंग सीट पर मौजूद था। उसे मेरी साइड का शीशा खटखटाने के बाद मुझे बाहर आने का इशारा किया। मौसम की मेहरबानी के तोफैल हमने गाड़ी के तमाम शीशे चढ़ा रखे थे और अलीउल सबा की धुंध ने उन्हें मलगजा कर दिया था। मैंने गर्दन घुमाकर अकबर नशीस पर बैठी हुई सदफ और जरगुल की तरफ देखा और सरगोशियाना अंदाज में कहा, परेशान या फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, देखो मैं इससे कैसे निपटता हूँ। फिर मैंने अपनी साइड का शीशा गिराया और गाड़ी के अंदर ही रहते हुए पुलिस वाले से पूछा, क्या बात है भाई। मेरे अंदाज और लहजे में बेपनाह एतमाद था। उसे बड़ी गहरी नजर से मुझे देखा। शायद वो तवक्का कर रहा था कि उसके इशारे पर मैं फौरन ही गाड़ी से बाहर निकल आऊंगा। जब मेरे रवैये ने उसकी तवक्का का जनाजा उठा दिया तो वो हैरत से मुझे तकने लगा। इस हैरत में एक एहतियात भी पाई जाती थी। उसने कहा, आपको साहब बुला रहे हैं। उसके अंदाज में तहकम या बद अहलाकी नहीं थी और ये मेरे स्टाइल का समरा था, वरना पुलिस वालों को ये जेबा ही नहीं देता कि वो किसी से इस तरह बात करे। मैंने गंभीर आवाज में पूछा, तुम्हारा साहब मुझे क्यों बुला रहा है और कहाँ बुला रहा है।
मेरे इस अंदाज से पूछने पर वो मजीद उलझ गया। उसे लगभग 100 गज दूर एक जानिब इशारा किया और बोला, साहब वहाँ चेकिंग के लिए सबको अपने पास बुला रहे हैं। मैंने सवाल किया कि ये लोग तुम्हारे साहब के पास पहुंच गए हैं। मेरा इशारा अपने सामने खड़ी गाड़ियों की तरफ था। उसने इस बात में सर हिलाया और कहने लगा कि आप भी जल्दी आ जाए वरना मुझे डांट सुनना पड़ेगी। मैंने उसकी मजबूरी को नजरअंदाज करते हुए कहा, इसका मतलब है कि तुम्हारा साहब गाड़ियों की नहीं बंदूक की चेकिंग कर रहा है। मेरे सवाल में अफसराना शान थी। वो मेरे तेवर और अपने साहब के लिए तर्ज तहातुब देखते हुए आप से सर पर उतर आया। बड़े ही उजलत भरे लहजे में बोला, सर वहाँ कागजात और बंदूक की चेकिंग होगी, बाद में गाड़ियों को भी चेक किया जाएगा। प्लीज आप गाड़ी से बाहर आ जाएं। मैं गाड़ी से बाहर तो नहीं आ सकता। मैंने कदरे जारहाना अंदाज इख्तियार किया। वो मुतज़ब्ज़ब नजर से मुझे देखने लगा। सर साहब का यही हुक्म है। अपने साहब से कहो कि वो यहीं आकर हमारी चेकिंग कर ले। मैंने बरहमी से कहा, आप देख रहे हैं सर वो उधर मसरूफ हैं। वो मसरूफ है तो मैं क्या करूं? मैंने उखड़े हुए लहजे में कहा, अगर उन्हें चेकिंग की बहुत ज्यादा जल्दी है तो वो यहाँ आ जाए, वरना मैंने तो कितार में गाड़ी खड़ी कर रखी है। जब नंबर आएगा तो चेकिंग भी हो जाएगी। पुलिस वाले के लिए वो सब कुछ नया, अनोखा और नाकाबिले यकीन था। मैंने सुना था और पिछले कुछ अरसे से देख भी रहा था कि पाकिस्तान में कमजोर और ताकतवर के लिए अलग अलग कानून था। कानून के रखवाले तो एक ही थे, लेकिन कानून के मुहाफिज इन तबकों के साथ बिल्कुल ही मुख्तलिफ और जुदागाना सलूक करते थे। गोया ताकतवर लोग कानून के साथ किसी खिलौने की तरह खेलते थे और कानून ने कमजोर, बेबस और लाचार को खिलौना बनाया हुआ था। कानून से यहाँ मेरी खास मुराद खास तौर पर पुलिस और आमतौर पर अदालती निजाम है। इसका मतलब ये नहीं कि ये डिपार्टमेंट्स कुल्ली तौर पर करप्ट थे, ताहम इनकी कारकर्दगी को जो होना चाहिए वो बहरहाल नहीं थी। मेरे अंदाज ने पुलिस वाले को बावर करा दिया था कि मैं तोप किस्म की चीज हूँ जो उसके साहब को हाथर में नहीं ला रहा। मैं गुज़श्ता 3 मिनट से उससे मगजमारी कर रहा था और शायद ये बात उसके साहब ने भी नोट कर ली थी। वहां से एक पुलिस वाले ने उसे पुकारा, रजब अली क्या बात है, तुम वहां इतनी देर से क्या कर रहे हो? उसने हिचकिचाहट अमेज नजर से मुझे देखा और फिर अपने साथियों की जानिब मुंह उठाकर बुलंद आवाज में बोला, सर गाड़ी से बाहर नहीं आ रहे। उसका मुझे सर कहना इस बात का गुमास था कि वो मुझसे और मेरी शख्सियत से पूरी तरह मुतासिर हो चुका था। उसने अपने ज़हन को ये बात समझा दी थी कि मैं उसके साहब से भी कोई बड़ा अफसर हूँ। ये मेरी चाल के साथ साथ उसके कमजोर दिमाग होने की भी दलील थी। पुलिस वालों ने ऐसी बात की थी कि उसके साहब का चौंकना लाजम हो गया था। वो जगह मुझे नजर आ रही थी जहाँ पर उनका साहब चेकिंग के नाम पर कानूनी कार्रवाई में मसरूफ था। मैंने वाज़ेह तौर पर देखा था कि उनके साहब ने लोगों को अपने सामने से हटाया और पुलिस वाले से अजहुद मुहातब हुआ। क्या कहा तुमने रजब अली? उसके सवाल में हैरत से ज्यादा बेइतनाई थी। रजब अली ने कहा, साहब जी सर कहते हैं कि आपको चेकिंग की अगर इतनी ही ज्यादा जल्दी है तो यहाँ आकर चेकिंग कर ले, सर गाड़ी से बाहर नहीं आएंगे। उसके साहिब ने वहीं से बैठे बैठे टोयोटा करोला की तरफ एक नजर देखा, फिर उसकी निगाह गाड़ी की अकबी नशिस्त की तरफ उठ गई। उसके बाद उसने पुलिस वाले को अपने हाथ से एक महसूस इशारा किया, जिसका वाज़ेह मतलब ये था कि उन्हें जाने दो। इस जुम्बशी कार्रवाई के बाद उसका साहब अपने माहौल में मसरूफ हो गया। पुलिस वाले ने मुझे निगाही सैल्यूट किया और बड़ी लजाजत से बोला, सर आप जा सकते हैं, मुझसे अगर गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। मैंने बड़ी रौनक से सर को हफीफ सी जुम्बश दी, एक झटके से करोला को आगे बढ़ा दिया। मेरी इस नुमाइशी रौनक में अदाकारी का हाथ था। हम नाके से गाड़ी आगे बाहर निकाल लाए तो जरगुल ने हैरत भरे लहजे में कहा, वजदान क्या तुम कुछ जादू जानते हो? नहीं तो, मैंने गहरी संजीदगी से जवाब दिया। मुझे तो ये छी का कमाल लगता है। सदफ बोली, वो भी किसी जादू से कम नहीं। ये छी क्या होती है? सदफ के इजहार ख्याल ने जरगुल को चौंकने पर मजबूर कर दिया। इससे पहले कि छी के हवाले से गुफ्तगू का एक नया टॉपिक खुल जाता, मैंने जल्दी से कहा, इसमें किसी जादू को दखल नहीं है और ना ही छी की कार फरमाई। ये एक खेल था एतमाद का, और मैं ये खेल बड़ी ही कामयाबी से खेलकर जीत चुका हूँ। एतमाद का खेल? जरगुल ने उलझन ज़दा लहजे में कहा। ताहम सदफ ने इस मौके पर मुकम्मल ही खामोशी इख्तियार कर ली। मैंने जरगुल की तशफी के लिए कहा, बड़े ही अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क की पुलिस बाअसर और पुरएतमाद लोगों पर हाथ डालने से डरती है। मेरे अंदाज ने उस पुलिस ऑफिसर को यकीन दिला दिया कि हम कोई आम लोग नहीं बल्कि बहुत ही ताकतवर और बाअसर हैं। हो सकता है सियासत में भी हमारा अमल दखल हो और बरसरे इक्तदार सियासी पार्टी की हमायत हमें हासिल हो, वरना पुलिस वालों के सामने इतनी अकड़ कौन दिखा सकता है। मैंने इत्तमाद का मुजाहरा करते हुए बाजी पलट दी। जरगुल ने कहा कि अगर वो पुलिस ऑफिसर तुम्हारे इत्तमाद की धौंस में न आता तो सूरत हाल की संगीनी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। हाँ, ऐसा मुमकिन था, मैंने तायदी अंदाज में कहा, और अगर ऐसे हालात पैदा हो जाते तो फिर मैं हर नोयत का हंगामी कदम उठा लेता।
ये बात बहरहाल तय है। मैंने अपनी ड्राइविंग पर तवज्जो को मरकूज करते हुए जरा तवक्कुफ किया और फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, मैं किसी भी सूरत में इन पुलिस वालों को करोला की डक्की खोलने की इजाजत नहीं दे सकता था। मेरा ख्याल है कि इसकी नौबत ना आती। सदफ ने ठहरे हुए लहजे में कहा। पुलिस वालों के ऑफिसर ने गहरी नजरों से हमारी गाड़ी को देखने के बाद हमें छोड़ने का इशारा किया था। जरगुल ने सदफ से पूछा, इससे क्या जाहिर होता है? इससे ये जाहिर होता है, सदफ ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए गहरी संजीदगी से कहा, उन्हें जिस गाड़ी और जिन अफराद की तलाश है वो हम हैं और ना ही टोयोटा करोला। 100 गज का फासला इतना ज्यादा नहीं होता कि वो हमें पहचान न पाता। अगर ऑफिसर को किसी खास शख्स या चंद अफराद की तलाश थी तो ये बात तय है कि हम उनके मतलूबा बंदे नहीं थे, वरना अगर शक की जरा सी भी गुंजाइश होती तो हमें इतनी आसानी से न छोड़ते। जरगुल इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली, हाँ हो सकता है, पुलिस वाले तो अपने बाप को भी नहीं छोड़ते। मैं बड़े तल्ख तजर्बात से गुजर चुकी हूँ। ये सिर्फ डंडे के सामने झुकते हैं, वरना शरीफ और कमजोर लोगों पर इन्हें सिर्फ डंडा ही चलाना आता है। अगर आवे का आवा ही बिगड़ा हो तो फिर कोई भी निजाम चल नहीं सकता। सदफ फलसफियाना अंदाज में बोली, डिपार्टमेंट पुलिस का हो या अदालतों का, हर जगह चंद अच्छे लोग भी मौजूद होते हैं। मेरे मामू की एक मिसाल रोशन और जिंदा है। वो अपने डीएसपी मामू औरंगजेब खां की बात कर रही थी। मैंने भी उस शख्स को खरा और दयानतदार पुलिस ऑफिसर पाया था। बहरहाल इस किस्म के फर्ज शनास पुलिस वाले उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। जरगुल ने शायद मेरा जहन पढ़ लिया। सदफ से मुहातब होते हुए बोली, ऐसे ईमानदार लोगों की तादाद आटे में नमक के बराबर है, जो सिर्फ और सिर्फ जायके से अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है, लेकिन इसकी कारकर्दगी आटे के मुकाबले में कहीं नजर नहीं आती। सब कहते हैं हमने रोटी खाई, आटे की रोटी। जरगुल ने बड़ी ही गहरी बात की थी, लेकिन सदफ भी हांसी तैयार बैठी नजर आती थी। एक तवील सांस खारिज करते हुए उसने कहा कि सारी खराबी सिस्टम की है। इंसाफ के तकाजे सिर्फ पुलिस तक ही महदूद नहीं, बल्कि इन तकाजों की तकमील अदालती निजाम की बरहूने बिन्नत है। अगर कोई सच्चा और खरा पुलिस वाला इंसाफ और फराइज के तकाजे पूरे करने पर कमर बस्ता हो जाए, लेकिन अदालत उससे ताउन न करे, तो पुलिस वाले की सारी मेहनत अंधे कुएं में जा गिरती है और इसकी दिल शिकनी अलग होती है। वो एक लम्हे को सांस लेने की खातिर रुकी, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, इस सिलसिले में मामू ने एक निहायत दिलचस्प किस्सा सुनाया था, जो सच्चा होने के साथ साथ बड़ा ही मौजूद और अफसोसनाक भी है। हमें भी सुना दो वो किस्सा। मैंने हालात की कल्फत को दूर करने की खातिर कहा। वो बोली, छोड़ो, हाँ वहाँ तुम दोनों हंसोगे, हो सकता है तुम्हें यकीन ही ना आए। यकीन आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने गाड़ी की रफ्तार को बढ़ाते हुए कहा, अगर अहम बात यह है कि हम दोनों हंसेंगे तो फिर सुना दो, चाहे हाँ ही सही। वो चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोली, चलो तुम जिद कर रहे हो तो सुना देती हूँ। फिर सदफ ने बताया कि औरंगजेब खां की जुबानी उसे मालूम हुआ कि उनके महकमे के एक फर्जशनास एहलकार ने एक कार लिफ्टर को पकड़ लिया। उस कार लिफ्टर का ताल्लुक एक बाइख्तियार और साहब हैसियत खानदान से था और वो अपने मन चले दोस्तों के साथ मिलकर इस किस्म की वारदातें करता था। मकसद कारू का हसूल नहीं, बल्कि सिर्फ सनसनीखेजी होता। वो छीनी ही गाड़ी को बादशा कहीं भी छोड़ देते, लेकिन उसकी हालत खराब करने के बाद वो अपने मोहमजोई के जज्बात की तस्कीन के लिए मसरूका गाड़ी को किसी खंबे या किसी ऐसी ही जगह टकराकर उसका हुलिया बिगाड़ देते। बड़े घरों के बच्चों के खेल भी निराले होते हैं। बहरहाल जब वो बिगड़ा हुआ अमीरजादा ईमानदार पुलिस वाले की गिरफ्त में आ गया तो पहले उसने धौंस धमकी से काम चलाने की कोशिश की। अपने बाप के वसी तर ताल्लुकात और इख्तियारात से उसे मुतासर करने लगा, लेकिन पुलिस वाला उसकी किसी धमकी से मरूब ना हुआ और उसे अपने साथ थाने ले जाने पर मुस्तर रहा। इन हालात के पेश नजर उस कार लिफ्टर ने पुलिस वाले को रिश्वत की पेशकश कर दी। उसकी नजर में ये एक ऐसा हरबा था जो पुलिस पर फौरन ही कारगर साबित होता है, लेकिन उस रोज उसका तजर्बा गलत हो गया। पुलिस वाले ने उसकी एक न सुनी और जरूरी कार्रवाई के बाद उसे अदालत में पेश कर दिया। जिसने भी सुना उसे खूब बुरा भला कहा। बाल्फाज़े दिगर उसके साथियों ने अच्छी खासी उसे लानत मलामत कर डाली कि उसने अपनी फजूल फर्ज शनासी में एक तगड़ी रकम गंवा दी। उस कार लिफ्टर अमीरजादे ने पुलिस वाले को 20,000 रुपए की रिश्वत ऑफर की थी और वो इस वक्त उसके परस में मौजूद भी थे। इस वाकये का सबसे ज्यादा तकलीफ दे पहलू उस वक्त सामने आया जब चंद रोज के बाद उस अमीरजादे ने पुलिस वाले को फोन किया और ये खुशखबरी सुनाई कि अदालत ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया है। उसे हैरत से दरियाफ्त किया कि कैसे। उसे जवाब मिला, तुम तो अहमक थे, अपनी ईमानदारी के चक्कर में तुमने मेरी पेशकश टुकरा दी, लेकिन वो मजिस्ट्रेट वो बहुत ही अक्लमंद साबित हुआ जिसकी अदालत में मेरा केस लगा हुआ था। पुलिस वाले ने पूछा, तुमने कितनी रिश्वत देकर जान छुड़ाई? उसे बहुत ही दिल शिकन जवाब सुनने को मिला।
कार लिफ्टर ने एक कहका लगाया और कहा, सिर्फ बिरयानी की 4 देंगे। मुझे स्ट्रेट के घर पर कोई तकरीब थी, हमने वहां भिजवा दी। उसने एक छोटी सी फरमाइश की थी जो मैंने आंख बंद करके पूरी कर दी। सदफ ने उस शर्मनाक वाकये को एहतमाम तक पहुंचाया तो गाड़ी में गहरी खामोशी ने कब्जा जमा लिया। किसी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। कोई कहता भी तो क्या कहता। सदफ ने एक हकीकत बयान की थी और इस हकीकत को मानना ही पड़ता है। कोई भी माकूल आदमी हकायक को झुटलाने की कितनी ही कोशिश क्यों ना करे, कितनी ही जुबान दराजी क्यों ना करे, वो हकायक को झुटला नहीं सकता। हम थोड़ी देर के बाद एक मोरिया और 2 मोरिया पुल को पीछे छोड़ते हुए बादामी बाग के इलाके में दाखिल हो रहे थे। अनायतुल्लाह बाजवा बारी जुस्से का मालिक एक दराज कामत शख्स था। दराज कामती ने उसके डेल डोल में एक जन्नाती मंजर भर दिया था। उसकी उम्र लगभग 50 साल रही होगी। थोड़ी सी कोशिश के बाद हम उसके अड्डे पर पहुंचने में कामयाब हो गए थे। उसके अड्डे के बाहर बहुत से ट्रक खड़े थे। वेलकम गुड्स कंपनी और फ़ियाम में ट्रकों का अड्डा कहलाती थी। रस्मी अलग के बाद वो यकटुक मुझे तकता चला गया। मुझे उसकी सदा पर हैरत भी हुई और कदरे अजीब सा भी महसूस हुआ। उसका अंदाज ऐसा ही था जैसे उसने कोई अजूबा देख लिया हो। जब मजीद चंद लम्हा तक उसकी महवियत न टूटी तो मैंने खंकाकर उससे मुहातब किया, बाजवा साहब क्या बात है, मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं? इस वक्त हम उसकी कंपनी के दफ्तर में बैठे हुए थे। वो चौंका और जेरे लब मुस्कुराते हुए बोला, जनाब मैं ये देख रहा हूँ कि आखिर आप में ऐसी कौन सी खास बात है? फिर कुछ नजर आया? मैंने इस्तफसार किया। उसे हाँ या ना में जवाब देने के बजाय मानी हेज अंदाज में सर हिलाया और कहा, फरीद पाशा कोई मामूली आदमी नहीं। अगर उसने आप लोगों की सिफारिश की है तो जरूर आप भी गैर मामूली ही होंगे। फरीद पाशा की जगह अगर कोई और होता तो मैं इतनी सुबह घर से ना निकलता। बल्कि यूं समझो कि जब उसने मुझे फोन किया उसके बाद मैं एक लम्हे के लिए सोया नहीं और पिछले 1 घंटे से मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। उसका अंदाज ऐसा था जैसे हमें बहुत देर हो गई हो। मैंने कहा, मैं तुम्हारी आमद का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमें पहुंचने में कुछ देर होगी। दरअसल हमें रास्ते में अंदाजा नहीं था। जब हम बाजवा के अड्डे पर पहुंचे तो 7:10 हो रहे थे। बहरहाल हमारे काम का क्या हुआ? मैंने बात के एहतमाम पर उससे पूछा। मैंने पाशा की हिदायत के मुताबिक इंतजाम कर दिया है। उसने बताया कि आप उस बंदे को साथ लाए हैं जिसे कराची पहुंचाना है। मैंने कहा, वो बदबख्त हमारी गाड़ी की डिक्की में है। टोयोटा करोला बाहर ट्रकों के पास खड़ी थी। अनायतुल्लाह ने मुझसे कहा कि मैं अपनी गाड़ी को अड्डे के अंदर ले आऊं। मैंने उसकी हिदायत के मुताबिक गाड़ी अंदर पहुंचा दी। अनायत बाजवा ने कहा कि आप इस बंदे को छोड़कर वापस चले जाओगे या इसकी रवानगी तक यही ठहरोगे? मैंने पूछा, इसे कितने बजे यहाँ से भेजा जाएगा? जिस ट्रक में मैं इसे भेजूंगा वो दोपहर 11 बजे तक अड्डे से निकलेगा। उसने बताया, हम इतनी देर तक तो यहाँ नहीं रुक सकते। मैंने कहा, हमें एक जरूरी काम के लिए फौरन निकलना होगा। वो हतमी लहजे में बोला, ठीक है तो फिर आप इसे मेरे हवाले करके जा सकते हैं। मैंने अपनी मालूमात के लिए पूछा, तुम्हारा ये ट्रक कराची कब पहुंचेगा? कल शाम 6 या 7 बजे। उसने बताया, 8 भी बज सकते हैं क्योंकि माल से लदे हुए ट्रकों की रफ्तार आम गाड़ियों से कम होती है। फिर उसने मेरे पूछने पर मजीद बताया कि वो चावल की बोरियों से भरे हुए ट्रक में फैसल को लाहौर से कराची पहुंचाने का इरादा रखता था। मैंने उसे फैसल के फन्ने, खरबो, जरब और खतरनाकी के बारे में बताया तो उसने सीना ठोंकते हुए कहा, यार तुम फिक्र ही ना करो, मैंने बड़ा ही महफूज और मजबूत बंदोबस्त किया है। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो उठकर खड़ा हो गया और मैंने उसकी तकलीद की। सदफ और जरगुल दफ्तरी हिस्से में ही बैठी रही और हम दोनों आगे पीछे चलते हुए अड्डे के उस हिस्से में आगे जहाँ लोडिंग वगैरह की जाती थी। इधर एक तरफ गोदाम नुमा चंद कमरे भी बने हुए थे। बाजवा ने एक कमरे का दरवाजा खोला और लाइट ऑन करने के बाद मुझे अंदर ले गया। कमरे के अंदर फर्श से छत तक चावल की बोरियां रखी हुई थीं। इस कमरे का 3/4 हिस्सा उन्हीं बोरियों ने घेर रखा था। अनायत बाजवा ने कहा, इन बोरियों के साथ ही तुम्हारी अमानत लाहौर से कराची पहुंच जाएगी। 8 बजे तक मजदूर आ जाएंगे, फिर मैं एक ट्रक अंदर मंगवाकर बोरियां लदवाना शुरू कर दूंगा और ये काम मैं अपनी निगरानी में करवाऊंगा। क्या तुम चावलों की ये बोरियां दिखाने के लिए मुझे यहाँ लाए हो? मैंने उलझन ज़दा लहजे में पूछा। वो मेरा हाथ पकड़कर एक तरफ ले गया, फिर एक बोरी पर पड़ी चादर को खींचने के बाद बोला, ये देखो। मैंने देखा और चौंक उठा। वहां मुझे एक मजबूत आहनी संदूक रखा दिखाई दिया था जिसमें हवा की आमदोशुद के लिए जा बजा छोटे छोटे सुराख बने हुए थे। मैंने सवालिया नजर से बाजवा को देखा तो वो वजाहत करते हुए बोला, पाशा ने मुझे माल की खतरनाकी से आगाह कर दिया था। इसी एहतियात के पेश नजर मैंने ये मुनासिब बंदोबस्त किया है। आपके माल को इस संदूक में बंद कर दूंगा। बल्कि वो किसी फौरी ख्याल के तहत चौंका और फिर बात को मुकम्मल करते हुए बोला, अगर आप मेरी थोड़ी मदद कर दो तो हम ये नेक काम अभी कर लेते हैं। मुझे बताया गया है कि बंदा बेहोश है। तुम्हें बिल्कुल दुरुस्त बताया गया है।
میں نے کہا لیکن وہ زیادہ عرصے تک بے ہوش نہیں رہے گا۔ وہ بے پرواہی سے بولا تم اس کی فکر نہ کرو، میں تمہیں ابھی سب کچھ دکھاتا ہوں، تم آؤ میرے ساتھ۔ ساتھ آؤ سے اس کی مراد تھی کہ ہاتھ بٹاؤ۔ میں نے عنایت اللہ باجوہ کا ہاتھ بٹایا اور فیصل کا بے ہوش جسم کرولا کی ڈکی سے اس آہنی صندوق کے اندر پہنچ گیا۔ باجوہ نے جس پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا اسے دیکھ کر مجھے ماننا پڑا کہ اس عمر میں بھی وہ حادثہ طاقتور اور مستعد تھا۔ وہ اناج سے بھری ہوئی کسی بوری کا سائز کا صندوق تھا۔ عنایت باجوہ نے اس ہوادار صندوق کا ڈھکنا بند کیا اور پھر اس کی کنڈی میں تالا لگا دیا اور بولا، لو بھئی اب تو تمہاری تسلی ہو گئی، یہ تالا کراچی جا کر ہی کھلے گا۔ اور اس نے ذرا سا رک کر صندوق کی جانب اشارہ کیا، کہنے لگا، اس طویل سفر کے دوران اگر اس بندے کو ہوش آ بھی گیا تو یہ 1000 کوشش کے باوجود بھی صندوق سے باہر نہیں آ سکے گا۔ تم نے اس کے ہاتھ وہ بہت تشفی انداز سے باندھ رکھے تھے نا؟ میں نے ذہن میں چکرانے والے اس سوال کے پیش نظر پوچھا۔ ٹرک میں چاولوں کی بوریوں کے درمیان اس کا دم تو نہیں گھٹ جائے گا؟ میرا مطلب ہے تم نے ہوا کی آمد و رفت کے بارے میں سوچ لیا نا؟ اچھی طرح سوچ لیا ہے، وہ پر اعتماد انداز میں بولا۔ میں نے بتایا نا کہ میں اپنی نگرانی میں لوڈنگ کرواؤں گا، ساری سیٹنگ میرے ذہن میں ہے، تمہاری امانت کا ایک بال بھی بانکا نہیں ہوگا۔ وہ ایک لمحے کو رک کر بڑے ہی فاتحانہ انداز سے مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، ویسے میں احتیاطاً ڈرائیور کے ساتھ 2 ہٹے کٹے اور چاقو چبند کلینر کو بھیجوں گا۔ چودھری نوازش علی کے لیے میرے ذہن میں بہت زیادہ غم و غصہ اور نفرت بھری ہوئی تھی۔ فیصل اسی چودھری کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس وقت میری چھری کے نیچے آیا ہوا تھا۔ ایک فوری اور شریر خیال میرے ذہن میں آیا اور میں باجوہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عنایت اللہ، میں نے پوری سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا، کیا یہ صندوق تھوڑی دیر کے لیے کھل سکتا ہے؟ اس نے الجھی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا۔ ہاں کھل سکتا ہے، مگر کیوں؟ میں اس کے اندر چند ضروری چیزیں رکھوانا چاہتا ہوں۔ مگر مثلاً کس قسم کی چیز رکھوانا چاہتے ہو؟ اس کی الجھن 2 چند ہو گئی۔ میں نے صفاقی سے کہا، امرود کے چند ٹکڑے، 2-4 کیلے، کلو بھر گاجر اور ایک پانی کا پیالہ۔ ان پھلوں اور سبزیوں کا موسم ہے نا؟ موسم ہے اور میں یہ کام کر بھی دوں گا، لیکن پانی کا پیالہ؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، سفر کے دوران میں پانی پیالے کے اندر نہیں ٹھہر سکے گا، اور چاولوں کے بھیگنے کا بھی اندیشہ الگ ہے۔ میں نے گمبھیر آواز میں کہا، تو خالی پیالہ ہی رکھ دو، لوازمات پورے ہونے چاہیے، ذرا دیکھنے والوں کو تو پتا چلے کہ یہ بندر کس انداز میں ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے۔ ویسے تو اس کے ہاتھ پاؤں اس انداز میں جکڑے ہوئے ہیں کہ پھل اور سبزی تک نہ پہنچ سکے، بلکہ صرف اپنا منہ پہنچانے کے لیے اسے دانتو پسینہ آ جائے گا۔ آئندہ 15-20 منٹ کے اندر اس نے میری ننھی سی فرمائش پوری کر دی اور صندوق کو تالا بند کرنے کے بعد چابی میرے حوالے کر دی۔ تو میں نے پوچھا، باجوہ تمہاری منصوبہ بندی اور مہارت کو دیکھتے ہوئے یوں لگتا ہے جیسے تم اس نوعیت کے کام کرتے رہتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔